Cameras on, please. Everyone should turn their camera on. And we'll be starting with the prayer. Join your hands. Om Hari Om Hari Om सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय। All right, everyone, are you excited for today's class? क्योंकि आज की activity will be more amazing. ठीक है? Excuse me. So before we even start with the activities, we'll be first doing the affirmation because it's really important to start our day energetic. And प्लीज़ तब तक जो लोग ने कल का टास्क जो है एक्सपेक्टेशन लिखने वाला वो कंप्लीट कर लिया है तो रेज योर हैंड एंड प्लीज़ काइंडली टर्न योर कैमराज ऑन. It is mandatory to turn your cameras on, okay? Cameras on, everyone. Lusa Mandari sir and Krishna sir and Jayender sir, turn your camera on. Manek sir, Radhe sir, Sailesh sir, Usha ma'am, kindly turn your cameras on, everyone. Amazing. और जो लोग फर्स्ट टाइम है नए लोगों का और भी बहुत ज़्यादा स्वागत है. ठीक है, यू विल फील द मैजिक इन दिस क्लास. एवरीवन टर्न योर कैमराज ऑन. यस, जिन्होंने कल का एक्सपेक्टेशन वाला टास्क कर लिया है वो रेज योर हैंड्स. कल मैंने जो आपको टास्क दिया था, और एल्स टाइप इन द चैट सेक्शन डन. ओके, we'll be starting with today's main message to us that who are we? We are our own brand. You are your own brand. I am my own brand. So what's the main thing with us is money is spiritual, business is seva, and whenever I do seva, I make more money. How? Let's dive into it. Everyone, sit straight, very straight, okay? Spine straight, everyone. Hands on your heart. Hands on your heart. Everyone, better turn your cameras on. Better turn your cameras on. Okay? Put your hands on your heart. Say with me. Close your eyes, everyone. Close your eyes and say with me. I am my own brand. Say with me loudly. I am my own brand. I am rich. I am successful. I am a magnet to miracles. I am powerful. I am the best. I deserve the best and I receive the best. I am the happiest. I am loving. I am kind. Thank you, universe, for this beautiful life, beautiful family, beautiful people, beautiful experience. Everything is beautiful in my life. My life is beautiful because I am beautiful within and out. Once again, I am my own brand. I am a magnet to abundance, success, and miracles. I am a magician.
I create magic in my life. Amazing. You all can open your eyes and say with me one more thing. जहाँ जहाँ मैं अपना नाम यूज करूँगी वहाँ वहाँ आपको अपना नाम यूज करना है, ठीक है? I am going to say something, ठीक है? Which is Shubh Vardhan chanting for self love. Okay. What you will do, जहाँ जहाँ मैं अपना नाम बोलूँगी, ठीक है, वहाँ पे आपको अपना नाम बोलना है. Like for example, I am sorry Vardhan. So Vardhan is my name, so you will say your name. Okay, Paritosh, Manik, Sultan, ठीक है, जो आपका नाम. Okay. Say with me everyone. I am sorry Vardhan for not giving you enough attention, enough love, for not listening to you sometimes. Please forgive me Vardhan for ignoring you, for not attending you and treating you with love. Thank you Vardhan for always being there with me, all the time whenever I need. And I love you Vardhan the way you are. Yes. Once again. Okay, once again I'll be reading and you all will say your name. जहाँ मेरा नाम रहेगा. I am sorry Vardhan for not giving you enough attention, enough love, for not listening to you sometimes. Please forgive me Vardhan for ignoring you, for not attending you and treating you with love. Thank you Vardhan for always being there with me all the time I needed you. I love you Vardhan the way you are. You all can open your eyes. Deeply breathe kare. Breathe very deeply. Inhale with all the positivity. Inhale with all the positivity and exhale out all the discomforts you have. Say with me. Excuse me. Say with me everyone. I am my own brand worth 300 crores in 369 days. मेरा हर काम जो 1 साल में होने वाला है, मेरा हर काम जो 10 साल में होने वाला है, वो मैं 1 साल में कर लेता हूँ, क्योंकि मैं शुभ वरदान का डायमंड मेंबर हूँ. I have all the energy to accomplish all my tasks that is leading me towards being a brand worth 300 crores in 369 days. Say this to yourself. I am my own brand worth rupees 300 crores in 369 days. I am a diamond member of Shubh Vardhan, and thus I complete my 10 years of success, 10 years of work, 10 years of richness, 10 years of hard work, 10 years of all the achievements I just achieved in my 1 year. And success is simple for me, easy for me. Amazing. Everyone, kindly turn your cameras on. Turn your cameras on. Each and everyone will turn their cameras on. This is a magic powerful class of Shubh Vardhan, ठीक है? Morning session है. You should be very, like active. Please turn your cameras on. You have to do some little activities. Everyone, am I audible though? Turn your cameras on. फर्स्ट जोर से आपको क्लैप करना है. क्लैप विथ ऑल योर एनर्जी. अमेजिंग. नाउ with me everyone, do your hands like this.
पहले make a fist, then open it. And feel the vibrations getting out of your hand. Feel, जैसे आप fist close करते हैं, open it and feel the vibrations. All positive vibrations. कुछ vibration feel हो रहा है हाथ में? After you close your fist and open it, you feeling? Yes, nod your head, yes. Amazing. Feel it. This is the power you have, and you are giving this power to your universe, which is your universe, where you are a success. You are wealthiest. You are rich. Everyone, do with me. Close your fist, open. With your palms, feel the energy. Amazing. Now, we'll be turning on our buttons. How to turn on our buttons? Who will tell me? Switching on, like this. Press all the fingers, tip of the fingers, both the hands. Both the hands. Both the hands. Amazing. Amazing. Those who are not turning on their cameras, I doubt you are doing or not. Amazing. Kindly turn your cameras on. Baki time mein I am audible, but when I am saying to turn your cameras on, I am not audible. Everyone. Yes, thank you, Jyoti sir. Everyone. See, this is a branding class, okay? You are your own brand. So it starts with your, being, like making your presence felt. And when you are on the camera, then you'll be attentive of how you present yourself on the camera. You'll be more aware, right? Okay. So after this exercise, right now, it's all about the task, okay? So पहले दिन जो हमने आपको टास्क दिया था वो अभी हमने जस्ट रिवाइज किया. दैट वाज शुभ वरदान चैंटिंग, जो कम से कम 108 बार तो आपको पूरे दिन में करना है. टेल योर सेल्फ आई एम सॉरी पारितोष, टेल योर सेल्फ आई एम सॉरी शैलेश, टेल योर सेल्फ दैट आई एम सॉरी माई नेम. ठीक है, जो भी आपका नाम है. ठीक है, मैंने आपको ये अटेंशन नहीं दिया या इस चीज़ पे मैं चूक गया. ठीक है, जिस भी चीज़ के लिए आपको लगता है कि इसके लिए मेरे को खुद से सॉरी बोलना चाहिए और इसको मेरे को करना चाहिए. ठीक है, say to yourself, that's how you will get awareness, pay attention on what you have to solve in your life and what you don't have to solve and evolve. Okay, so this will happen only when you have the current stage awareness. What is happening in your life? If you don't know you're right now what frequency you are vibrating, then you will be like कि ये सब तो ठीक ही चल रहा है. ठीक है, शायद ये कर लेने से हो जाएगा. नहीं, जब तक रूट नहीं पता चलेगा तब तक आप गोल्स को देख करके कुछ नहीं कर सकते. आपको लगेगा कि ऊपर से ही पेस्टिसाइड्स छिड़कने से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं. पौधा अल्टीमेटली कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ से ग्रो करेगा? एवरीवन टाइप द वर्ड. आप ऊपर से पेस्टिसाइड्स छिड़कोगे तो काम बनेगा? नहीं. व्हाट इज कनेक्टेड? रूट. Everyone type this word. Root is connected, right? Roots. Okay, all right. So one more thing. Okay, before the activity, one more thing, one more reminder to yourself. Everyone, once again, hands on your heart. Hands on your heart, everyone. Close your eyes and say with me, with a big smile on your face. Have a big smile. जितना big आप smile कर सकते हो. Big smile. दांत दिखने चाहिए. Amazing. Great. Close your eyes and say with me, money for me is spiritual and business is seva. Whenever I do seva, opening up my care account, my cash account swells and floods with money. I am my own brand and my value is invaluable, unlimited. And when I serve with my unlimited value, I attract unlimited flow of money. Money flows to me effortlessly like a river. I am a magnet to success and miracles.
I create magic not just in my life but in other people's life. And thus I attract large amount of wealth, large amount of good relationships, good health. Everything is 360 degree aligned in my life because मैं यहाँ अपना नाम करने के लिए नहीं या अपना नाम भारत में करने के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम इस पूरे विश्व में करने के लिए हूँ. My purpose is bigger than me. My vision, my mission is bigger than me. मैं हूँ हर हाल के लिए और हर काल के लिए. And today I feel this from within. I am feeling that I am with huge responsibility and I will accept change. Enough is enough. Enough juggling with my past problems and solving it. I will not keeping on solving my past problems. I'll not be juggling in my past patterns anymore. I choose to evolve. I choose to transform. I choose to upgrade my frequency. I choose to position myself at the highest because I know I have the potential and I know I am the best. I am my own brand. I am a magician. I am a creator. I am a magnet to miracles, success, and abundance in my life. So now I decide that I will stop juggling, stop solving, and start evolving. Because I know my money, my business is my reflection. The more I grow, that much my money grows, my business grows, my surrounding grows, my network grows. Everything evolves, enhances when I enhance myself. So I promise to myself that I choose change. I accept change. And I am the best to change and become the better version, the best version of myself. Everyone, open your eyes. So, are you feeling like you are a better version of yourself? An instant feeling comes because now you have promised to yourself that you are not this particular Rakesh or Paritosh or Sultan or Sailesh or Shiva or PL sir, ठीक है, आप अभी इस लेवल पे नहीं हैं. You belong to something else, some other different world. So what matters right now is not vibrating in the problem frequency. Not keep on solving the same patterns, same problems. अब वो problem को छोड़ दो. ये problem solve कब होगा? जब हम इसी problem को solve करने की frequency पे रहेंगे तब ये नहीं solve होगा. जब हम देखेंगे कि ऊपर क्या है, क्या होना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी में जाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी क्योंकि तब हमारे पास इससे बड़ा कोई मिशन रहेगा, विजन रहेगा. ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स गेट ऑन टू टास्क अगेन. जिन्होंने टास्क किया है डे 1, जैसा कि मैंने बोला, अभी जो हमने शुभ वरदान चैंटिंग कराया है, ठीक है, आई एम सॉरी वरदान फॉर नॉट गिविंग यू एनफ अटेंशन, ठीक है, आपका नाम रहेगा. सो ये जो था ये हमने आपको बना के दिया था, ठीक है. उसके बाद सेकेंड डे में हमने आपको बोला कि यही सेम आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 बातें अपने नाम के साथ 4 रीजंस के साथ लिखे. ये दूसरा टास्क जिसने कंप्लीट कर लिया वो टाइप कंप्लीटेड, और जिन्होंने नहीं किया आप तीसरे टास्क तक नहीं जा सकते क्योंकि हम लोग अब आगे बढ़ रहे. ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको पहले करना है जो लोग नए हैं. ठीक है, फॉर द पीपल हु आर कंटिन्यूइंग इन द टास्क, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपने दूसरा डे कर लिया है एवरीवन, जिनको मैंने बोला था, तीसरा डे जिसमें मैंने बोला था कि आपको एक्सपेक्टेशन लिखनी है. आपको किससे क्या क्या, आपके क्लोज्ड वन से, लव्ड वन से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है वो आपको लिखनी है. ठीक है,
and right now you will have a huge realization. ठीक है, I'll be telling you the fourth task. ठीक है, fourth day. See, everyone जिन्होंने लिखा है प्लीज लेट मी नो, बिकॉज यू नो आपका टाइपिंग नहीं आ रहा है, सो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज कल आई यू नो सॉ सम पीपल वर राइटिंग, so you should be accountable to say कि yes I have completed my work. I am audible तो? Paritosh sir, written your expectations yesterday? नहीं, कोई बात नहीं, okay. Today we'll be doing. See, ये चीज़ है ना कि हर दिन आपको अपना टास्क करना ही पड़ेगा. This is a challenge. You have taken oath to complete this challenge and change yourself. So don't be lazy in doing the task. All right. So let me revise it. Shiva sir completed. Amazing. Everyone जो completed है completed टाइप कर दे, जो नहीं है कोई बात नहीं. Okay. First day जो chanting अभी हमने की. Second day मैंने आपको बताया I am sorry myself. ठीक है, myself नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है. उसके बाद reason देना है कि क्यों I am sorry. देन थैंक यू भी लिखेंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, देन रीज़न देना है क्यों आई एम थैंक यू. ठीक है, क्यों आई से थैंक यू टू माई सेल्फ, उसका एक बड़ा रीज़न दे दो. ठीक है, देन आई लव यू, तो क्यों आई लव माई सेल्फ, आई लव यू अपना नाम और क्यों द रीज़न. ठीक है, excuse me. After you complete this task, your third task is to write the expectations you have from others. Okay, like your loved ones, closed ones, और जो आपको लगता है कि ये मेरे साथ ये करता, ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट देता. ठीक है, ये मतलब मेरा साथ देता या मेरे को सपोर्ट करता. ठीक है, मेरे लिए खड़ा होता. ठीक है, या इस टाइम पे इसे ये करना चाहिए था मेरे लिए. ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेशन आपको है अपने बच्चों से, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, चाहे जो भी क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं या कजन्स हैं, जो क्लोज्ड वंस है, लव्ड वंस है, ठीक है, वो आपको लिखना है. अभी जिन्होंने लिख लिया है उनके लिए नेक्स्ट 4 डे का टास्क क्या होता है वो ये है कि चेक मार्क कीजिए जो आपने लिस्ट बनाई है एक्सपेक्टेशन की, उसमें चेक मार्क कीजिए कि इसमें से ऐसे कौन कौन से एक्सपेक्टेशंस हैं जो मैंने फुलफिल किए हैं अपने लिए. सपोज अगर आपने लिखा है कि ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, मेरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देता है, so first are you giving compliment to yourself? ठीक है, इसके आगे हम लोग बाद में जाएंगे, लेकिन अभी आपका यही टास्क है. एक बार आपने एक्सपेक्टेशन लिख लिया, अब चेक कीजिए क्या ये जो आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपने ये खुद के लिए फुलफिल किया है. सपोज आप चाहते हो कि ये इंसान मुझे मेरी प्रायोरिटी समझे. ठीक है, अपनी प्रायोरिटी समझे. ठीक है, ये इसको मुझे पहले रखना चाहिए था. बट द क्वेश्चन इज, आप वहाँ पर चेक मार्क करोगे कि क्या मैं खुद के लिए अपनी प्रायोरिटी हूँ, क्या मैं खुद को पहले रखती हूँ. ओके, सो जो मतलब सिंपल सा टास्क है कि जो एक्सपेक्टेशन आपने दूसरों के साथ लिखी है, नाउ यू विल से, सपोज आपने लिखा है कि ये मेरे को वॉक पे क्यों नहीं ले जाता. ठीक है, या मेरे साथ क्यों नहीं चलता. आप अकेले खुद पे कॉन्फिडेंट हो कि आप अकेले वॉक पे जाओगे. ठीक है, मतलब वो एक्सपेक्टेशन आप खुद के लिए फुलफिल कर रहे हो या नहीं. ठीक है, उसमें से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपकी होगी कि हाँ मैं फुलफिल कर रहा हूँ, और जो नहीं होगी, जो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो अपने लिए और दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, टिक डाल दोगे. ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो आप खुद से फुलफिल नहीं करते हो अपने लिए, ठीक है, उन सबको चेक मार्क कर दो, टिक कर दो. क्लियर है? अगर क्लियर है टास्क तो लेट मी नो क्लियर. क्लियर है? I'll be giving you time. ठीक है, जिनका नहीं हुआ है मतलब जो पहली बार है वो पहला टास्क ही करेंगे. आप डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ सीरीज. ठीक है, ये एक तरह का मैकेनिज्म है जो आपको इवॉल्व करता है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहला टास्क, जो पहली बार आए हैं दे विल राइट आई एम सॉरी फॉरगिव मी, वो एक एक लाइन करके अपना नाम और अपना रीज़न क्यों आप ये बोल रहे हो. ठीक है, पहले लोगों का क्लियर हो गया. ठीक है, जिनका पहला कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये करेंगे.
दूसरे वाले लोग जिनका एक्सपेक्टेशन नहीं लिखा गया है वो लोग अपना एक्सपेक्टेशन लिखेंगे, ठीक है, कि व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पार्टनर और फ्रॉम माय चिल्ड्रन, ठीक है, ऑलराइट, वो आप लोग लिखेंगे। और तीसरे दिन जो अभी आप लोग कर रहे हैं, मतलब अभी जो चल रहा है, ठीक है, जिनका सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, उन लोगों के लिए वो टास्क है कि अब आपको चेक मार्क करना है कि इनमें से कौन कौन से एक्सपेक्टेशन है जो मैंने अपने लिए फुलफिल किया ही नहीं, ठीक है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स। क्लियर है सबको? सो जहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़े, ठीक है। एवरीवन हैव योर नोटपैड्स ना? मैंने बोला है क्लास में हर बार नोटपैड लाने के लिए। आपका जो जिस डायरी में आप लिख रहे हो, डोंट चेंज। ऐसा नहीं कि रफ में लिख लिया आपने, एक में इधर, एक डायरी में उधर, एक स्पेसिफिक डायरी में होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सीरीज, आप गुम नहीं कर सकते। क्लियर है? स्टार्ट राइटिंग एवरीवन अकॉर्डिंग टू योर लेवल, कंप्लीट योर टास्क जो जो आपका है, ठीक है। डे 1 है तो डे 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। ब्रिंग योर नोट पैड्स एंड पेन, और कोई डाउट है तो पूछ ले, ठीक है, बिकॉज राइट नाउ यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग। If you have any doubts, you'll be asking, or else you'll be start writing. अच्छा, okay, just wait a sec everyone, listen to me once, there was a mistake. See, आपको क्या करना है ना, जब एक्सपेक्टेशन आपने लिख लिया, उसके बाद उसको टिक मारना है जो आप करते हो खुद के लिए, ठीक है, ऑलराइट। तो जो चीज़ आप खुद के लिए करते हो उस पर टिक मारना है, ना कि वो चीज़ जो आप नहीं करते हो। क्लियर है? ओके, स्टार्ट एवरीवन। And while doing the activity, don't close your cameras, okay? Keep opening up your cameras. Turn on your cameras, everyone. Especially while you are doing the action, taking the action. Yes. Yes, PL sir. First day task is, see, जो फर्स्ट डे था ना, वेरी फर्स्ट डे, ठीक है, वो जो टास्क था, दैट इज जो अभी हमने चैंटिंग कर ली, ठीक है, दैट आई एम सॉरी, थैंक यू, ठीक है, जो मैंने बना के दिया था। अभी आपको अपने से जो करना है एज अ मतलब न्यू मेंबर, वो है कि आई एम सॉरी, अपना नाम और क्यों आप अपने आप को सॉरी बोल रहे हो। क्लियर है PL सर? फिर सेकेंड लाइन में लिखना है, प्लीज फॉरगिव मी, अपना नाम और क्यों आप खुद से माफ़ी मांगना चाहते हो। कुछ तो ऐसा आपने किया होगा, ठीक है, कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि काश मैं ये कर लेती, ठीक है। देन थर्ड लाइन में लिखना है थैंक यू, अपना नाम और आप क्यों, कुछ तो ऐसा आपने अपने अंदर फील किया होगा जो आप थैंक यू बोल पाओ अपने आप को, तो वो बिग रीज़न लिखना है, ठीक है। आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग अ गुड कम्युनिकेटर, या फॉर कनेक्टिंग विद पीपल, या फॉर बींग कॉन्फिडेंट, ठीक है, या अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली बींग देयर फॉर माई सेल्फ ऑलवेज, ओके। देन फोर्थ लाइन में आपको लिखना है आई लव यू, उसके बाद अपना नाम, आई लव यू वरदान, फॉर द वे यू आर, या फॉर बींग सो ब्यूटिफुल हार्टेड, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि इसलिए मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। सो क्लियर है फर्स्ट मेंबर्स, फर्स्ट टाइमर्स? दिस यू हैव टू डू। Anyone with any doubts, come up, or else start writing, start doing your task. And cameras on mandatory. Please turn your cameras on, everyone. जिनका ऑफ है, turn your cameras on and start doing your work.
एंड येस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. आपको जो पहला दिन का जो लोग कर रहे हो उनको वो जो आप चैंटिंग कर रहे हो ना वो 108 बार करनी है. तो आप अभी 7 टाइम्स लिखोगे आई एम सॉरी वगैरह जो आप लिख रहे हो एंड रीजन दे रहे हो, ठीक है. बट एक्सपेक्टेशन वाले को 108 बार नहीं लिखना है, एक्सपेक्टेशन तो एक ही बार लिखोगे, ठीक है. सो वो चीज़ एक बार करनी है. लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं, ठीक है, जो आपको लिख रहे हो ना अभी रीजन दे करके थैंक यू सॉरी वाला, तो उसको आपको 108 बार लिखना है खुद को रियलाइज कराने के लिए, ठीक है. तो अभी इन द क्लास राइट एटलीस्ट 7 टाइम्स, ओके. एंड देन आपको पता रहेगा वंस यू इनिशिएट द एक्शन तो आप फिर अपने बाद में क्लास के बाद उसको कंप्लीट करना 108 बार, ठीक है. क्लियर? एंड वंस यू ऑल आर डन, टाइप डन. No cheating, guys. Don't turn your cameras off. Cameras on, please. Camera on is mandatory. Kindly turn your cameras on.
ओके, जो लोग एंटर करते जा रहे, सी इन द चैट सेक्शन, मैंने टास्क आपको बता दिया है चैट्स में, ठीक है, आप देख करके कर सकते हैं. ऑल राइट. एंड न्यू मेंबर्स, यू हैव टू क्रिएट योर इंट्रोडक्शन वीडियोस. ठीक है, 3 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे. आप बोलेंगे कि आप हमें कब से फॉलो कर रहे हो. ठीक है, ये भी बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है. ठीक है, आप क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपर्टीज है. ठीक है, हल्के में ना लीजिए. ठीक है, यू हैव टू डू दिस टास्क एंड यू विल सी. ठीक है, कि व्हाट चेंज इट मेक, सेल्फ अवेयरनेस एंड ऑल. ठीक है, यू विल रियलाइज. फॉर न्यू पीपल याद रहेगा, यू हैव टू क्रिएट योर इंट्रोडक्शन वीडियो. ओके, everyone start doing your task. कश्यप सर, राइट नाउ जस्ट कंप्लीट योर वर्क, जैसे मैंने आपको बोला है. ठीक है, अभी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है. ये जब तक आप डे एंड तक इस चैलेंज को नहीं लेके जाएंगे, आपको ऐसे भी नहीं समझ में आएगा. ठीक है, सो ये 1 थिंग एट ए टाइम ही है. आपको पहले डे 1 ही करना है. 2 पे नहीं जाना, 3 पे नहीं जाना, 4 पे नहीं जाना, 5 पे नहीं जाना. ठीक है, उसको समझने की अभी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आई हैव गिवन यू डे 1 में क्या करना है. ठीक है, चैट्स चेक कीजिए, मैं वापस से पेस्ट कर दे रही हूँ. सो आई हैव रिटन द टास्क हियर. ठीक है, फॉलो इट एंड कंप्लीट इट. कैमराज ऑन एवरीवन. स्टार्ट राइटिंग, जो मतलब कंटिन्यू राइटिंग, एंड बाय द टाइम ऑल्सो कैमरा ऑन रहना चाहिए. कीप योर कैमरा इन सम स्टेबल पोजीशन. डोंट होल्ड इट विथ योर हैंड्स एंड राइट.
Continue writing, everyone. Stay focused on your writing.
होप कि आप अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है हमारा डायमंड मेंबरशिप आप सभी के लिए है, और वो एडवांस वर्जन है जो आपको डायरेक्ट मार्केट से पैसे लेने में मदद करता है। आपका काम ये नहीं है कि आप कोई ज्ञान सीखे और ज्ञान को अपने अंदर रखे रहे। आपका काम ही है लर्न, प्रैक्टिस एंड शेयर, जिससे कि आपका व्यापार चालू हो। लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं, आपका वाइब ही आपका ट्राइब को बिल्ड करता है। तो ये काम आप पहले दिन से करेंगे तो भी होगा, और आपको लगेगा कि मैं पढ़ के पंडित हो जाऊँ उसके बाद करूँ तो भी होगा। दोनों सूरत पे काम होता है। तो आपको पहले देखना है कि आपको, जैसे मैं सीखते सीखते पढ़ा भी रहा था, और आज ये अभी अभी मुझे लगता है कि एक ठहराव आया है 4 साल के जर्नी के बाद, जहाँ पे मैं जैसे चाहूँ चीज़ें वो अपने उंगलियों से घुमा सकता हूँ। आज मेरे पास 36-37 सोर्स ऑफ इनकम है जो मैं घर बैठे ही पॉसिबल करता हूँ, और इसी ऑनलाइन की दुनिया से पॉसिबल करता हूँ, इंटरनेट से पॉसिबल करता हूँ। सिंपल सा बात है, मेरे जो भी फीस आपको लेते हैं हम, जैसे कि आपने दिया है 1296 रुपया, या फिर आपने दिया है इस मॉर्निंग सेशन का, है ना, 2999 रुपया, तो ये पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है। मैं ये पैसा से आपको और आपके स्पाउस को भी एक्सेप्ट करता हूँ। आप और आपके धर्मपत्नी या धर्मपति जो भी है वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में आपके 21 साल से कम के बच्चों को भी अलाउ करता हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आपको? तो मैं आपके साथ आपके 2 ऐसे बच्चे जो 21 साल से कम है उनको भी अलाउ करता हूँ, यानी 4 लोग। जैसे मैं हूँ, मेरा परिवार है, वैसे मैं आपको भी एक पूरा बंच ऑफ ब्रांड का समझता हूँ। मुझे पता है कि ये बड़ा काम है जो अकेले पॉसिबल नहीं होता। आपको असिस्टेंस लगता है, जिस तरह से रोटियां घर से पक के मिलती हैं, कपड़े, है ना, घर साफा मिलता है, तो उसमें आप बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। आप बाहर की महफिल को संभालते हैं, घर की चीज़ों को कोई घर का व्यक्ति कर रहा होता है। उसी तरह से, क्योंकि अब पूरा कारोबारी घर से हो गया है, पूरा शिफ्ट हो गया है, तो मैं सिर्फ आपके मंत्र कान में फूकूं उससे कुछ नहीं होता। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी का सहयोग, आपके बच्चों का सहयोग भी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ही है कि जो जीने का शैली है, सनातन का मतलब ही होता है कि सनातन मतलब कुछ लर्निंग लेसन्स नहीं है। सनातन का मतलब है जीने की पद्धति, है ना। आप कैसे अपने आप को 1 पर 1 11 करते हैं ना, वो पद्धति सनातन है। सनातन का मतलब ही इटर्नल लॉ ऑफ लाइफ, जो व्यवस्थाएं हैं, जीवन को जीने की व्यवस्थाएं हैं, वो उसका नाम है सनातन। और मैंने जितने भी वेदास हैं, जितना भी ग्रंथास हैं, सबके साथ जा करके अपनी चीज़ों को इकट्ठा करा है। और इस डिजिटलाइजेशन का जो भी एल्गोरिदम है वो वेदास के थ्रू ही डिकोड होता है। चाहे वो परमाणु बम का व्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हवाई जहाज उड़ाने की व्यवस्था हो, विमान शास्त्र हो, हर एक चीज़ के शास्त्र हमारे पास पहले से, हमारा जो व्यवस्था है वो साइंटिफिक है, और वो बहुत पहले से स्थापित है। यानी जो बातें उन्होंने करी है हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, वही आज के डेट में साइंस का नाम लेती है। यानी जो हमारे किताब है वही महासाइंस है। अगर ये बात आप समझने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार हम लोग के करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने तो इतना ईजी, इतना रसगुल्ला टाइप से, मिठाई के टाइप से चीज़ें कर दी हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि उन्होंने कहानी रूप में एक ऐसे, मतलब खेल खेल में हमें सिखाया है कि एक अलादीन था, उसके पास एक चिराग था, वो उसको घसता था तो उसमें से जीनी निकलता था, और बोलता था क्या हुक्म है मेरे आका, और वो लाके आपके सामने रख देता। देखिए आज के हाथ में मोबाइल है, कौन सा स्मार्टफोन, ऐसे घसिए, उसमें से एक आएगा, आई एम गूगल असिस्टेंट, प्लीज़ क्या बात है बोलिए, मैं एलेक्सा हूँ, क्या बात है बोलिए, मैं श्रेया हूँ, बोलिए क्या बात है। कहने का समझ रहे क्या है। तो उन्होंने खेल खेल में हमें वो सारा विद्या दे दिया जो आज आप उस विद्या को बाजार से खरीदते हैं और लगता है कि मैं तो ये एलेक्सा वाला हूँ, मैं तो ये गैजेट वाला हूँ। तो आपको समझना होगा, चीज़ें बड़ा सहज करके छोड़ा उन्होंने। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग अपने जीवन में भाग रहे हैं, इतना भाग रहे कि जो हमारी ताकत है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा मतलब असली रियल है ना, वो हम लोग अपने आप को छोड़ के सब कुछ कर दे रहे हैं। धोखाधड़ी इस लेवल पे है कि आपने अपने आप को छोड़ के सब कुछ कर देना है। हमारे साथ बैठने से क्या है कि आपको, हम आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने अभी का जो टास्क है वो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मम्मी से, भाई से, वाइफ से, बच्चों से क्या है, भाई से क्या एक्सपेक्टेशंस है। अब सारे एक्सपेक्टेशंस को आपने लिख डाला कि मेरा दोस्त हरीश से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है, मेरे चाचा से मेरा ये एक्सपेक्टेशन है। वो आपसे करीब है, आपके क्लोज हैं, बहुत आपसे उनकी बातें होती हैं, दिल मिलता है, लेकिन बावजूद एक एक्सपेक्टेशन है। अच्छा आए हैं,
किनारे में बैठ के बात करें, देखो फिर से आज खाली खाली हाथ आ गए, मिठाई का डब्बा नहीं लेके आए, बच्चों का घर है, खाली हाथ आ जाते हैं, कुछ भी आपके मन में बात उठ सकता है। तो कोई भी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आपके नियर एंड डियर वन है, मौसी आ गई, अच्छा बुआ आई क्या, फिर आ गई ना खाली हाथ, ये ऐसे ही है, खाली हाथ आ जाती है, बच्चों का घर में कुछ लेके नहीं आती है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, किसी भी लेवल का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, किसी भी लेवल का कुछ भी हो सकता है, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। आपने वो लिखना था, आपको उसके बाद क्या स्टेप है कि उसमें टिक लगाना था, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपको पता चलने वाली है। 11 स्टेप है ये, 11 दिनों में ये कंप्लीट होता है, 11 स्टेप है और 12वें दिनों में इसका रिजल्ट सामने दिखाई देता है। तो अभी आप लोग दूसरे तीसरे स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। अभी आपके लिए क्या जवाबदेही है कि अगर आप और आपके स्पाउस पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि हम लोग म्यूज़िक बजाते हैं रात में, तो क्या करते हैं, पहले आप अकेले, फिर आपके बच्चे आपके साथ, जैसे राकेश करे हैं, सुल्तान भाई हैं, और भी के घर में छोटे बच्चे हैं, पक्का वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब उससे क्या होता है, धीरे धीरे फिर उनकी वाइफ, क्योंकि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है और उनके घर का एक एल्गोरिदम, एक वातावरण बन जाता है कि 9:30 बजे के बाद म्यूजिक बजेगा। ओके, नोटिस कर रहे हैं। तो एक चीज को जब आप रिपीट मोड में बार 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 बार, क्योंकि 40 डेज का 40 है ये, बार बार होगा ना, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर में आप अकेले पागल थे, फिर पूरा परिवार पागल होने लगेगा। ठीक है ना। तो ये पागल पागल खेलना शुरू हो गया, यानी आपके घर का वाइब्रेशन हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी हाई हो गया। ठीक है ना। एक बार आपके घर का, आपकी वातावरण का फ्रीक्वेंसी हाई हो गया ना, तो अपॉर्चुनिटीज को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी जो भी बातें हैं वो हमेशा ब्रह्मांड में अवेलेबल है, वो आप तक पहुंचती है या फिर नहीं पहुंचती है। मानिक साहब समझ पा रहे हैं? चीजें हर वक्त यूनिवर्स के पास अवेलेबल है, वो उसके पास कभी किसी चीज की कोई क्राइसिस है ही नहीं। क्राइसिस सिर्फ आपकी मानसिकता में है, आपकी एनर्जी लेवल पे है। जहां आपका एनर्जी लेवल ब्लूम करता है तो अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आपको अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि आप एक ब्लूम होते हैं, आप हमेशा उत्साहित होते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको चीजों के साथ जुड़ना है। हम जो करवा रहे हैं वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत एल्गोरिदम उसका फिक्स किया हुआ है। अगर आपने इतना किया तो इतना होके ही रहेगा। और आपको महसूस हो रहा होगा, जो लोग 5 7 10 दिन से बैठे हैं सेशन में, लगातार वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एवरी डे वो मूव कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू गाइडेंस मूव कर रहे हैं, मतलब गारंटी है कि उनको चेंजेस आ ही रहा होगा। नो डाउट कि चेंजेस नहीं आ रहा होगा, वो आ ही रहा होगा। वो बोलेंगे, नहीं बोलने सकेंगे, हो सकता है, होता है कितने बार कि आदमी अपने अंदर फील तो करता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता, उसे शब्दों में पिरो नहीं पाता है। ओके, है ना। तो बहुत सारी चीज़ आप महसूस करते हैं लेकिन उसको शब्द नहीं दे पाते। तो ये धीरे धीरे भावनाएं खुलती हैं, ये बातें आपको समझ में आती हैं कि कैसे चीज़ों को व्यक्त करना है, कैसे चीज़ों को आगे अगले स्तर पे पोएट्री करना है। आपके साथ एक ही बात है कि आपको इस बात को समझना है कि ये मेरा मतलब हर कुछ है। मतलब मैं जहाँ हूँ, जैसे आप अपने छोटे नवजात शिशु के साथ अगर है तो आप अपने गोद के बच्चे को कहाँ छोड़ देंगे? आप कहीं भी जाएंगे। झांसी की रानी पीठ में बांध के भागती थी अपने बच्चे को युद्ध लड़ने के लिए। नोटिस कीजिए। तो जब आपके साथ आपका नवजात शिशु क्या है, आपने इतने दिन में धोखाधड़ी किया है, वैसे आज कचरा ज्ञान के साथ जीवन जिया है ना, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता, बस भेड़ के चाल जहां तहां घुसे चले जा रहे थे। अभी आपके साथ एक क्लैरिटी आ रही है कि एग्जैक्टली ये पहला स्टेप है, ये उसके बाद का स्टेप है, ये उसके बाद का स्टेप है। और आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी, यानी अपना स्टैंडर्ड को आप रेज कर रहे हैं। अभी आप बातों से सुन रहे हैं, कल आप ये चीज को अपने चक्रास के लेवल पे अपलिफ्ट करेंगे, यानी आप अपने इनर सेल्फ को उठा लेंगे। आपके क्रोन चक्रा पे हमेशा आप राइज करते रहेंगे। यानी आपको जैसे मैं ऑरा देखने सिखाऊंगा, वैसे आप जब देखेंगे तो पूरे 7 कलर के रैम्बोज हैं ना, वो आपके बॉडी के चारों तरफ दिखाई देंगे। अगर आपका वो रेज हो गया तो वो दिखाई देगा। वो जो गौतम बुद्ध के पीछे या गुरु नानक के पीछे जो व्हाइट रंग का जो गोल चक्रा होता था ना, वो आपका भी दिखाई देता है। आप अगर ढंग से देखेंगे, आपको मैं सिखाऊंगा, जब आपको नोटिस कराऊंगा तो पता चलेगा कि आप किसी का भी ये ऑरा देख लेते हैं, उसके पास ऑरा है भी या नहीं, उसका वो आभा मंडल बन भी रहा है या नहीं, तो सब कुछ दिखाई देगा। किसी का वास्तु, किसी का बदन का तकलीफ, किसी का दुकान फैक्ट्री का तकलीफ, कहीं जाना नहीं पड़ेगा आपको। आप बैठेंगे और उसके फैक्ट्री में कहाँ पर कचरा जमा है, कहाँ से उसको तकलीफ हो रहा है, वो आप बता देंगे। उसके घर में कहाँ तकलीफ है, किचन में प्रॉब्लम है, उसके कहाँ पर दिक्कत है जिसकी वजह से उसके घर में कलह या शांति नहीं है या पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर कहाँ पर है जो एनर्जी ब्लॉकेज है, आप जहाँ बैठे वहीं से बता देंगे। और जहाँ आपने ये पावर अपने अंदर फील किया, लोगों की मदद चालू हो जाएगी। और जहाँ किसी का मदद हुआ, वो तो आपका पैर छूना शुरू करेगा। एकदम क्लियर कट बात है कि ये सारी बातें एकदम चुटकियों में होती हैं, लेकिन क्योंकि आप भागने में परेशान हैं, इसका टोपी उसका सर करने में परेशान है, तो लो गया काम से। सारी दुनिया पे आप नजर गाड़े हुए हैं और अपने ऊपर आप एक बार देखे ही नहीं। सारा खेल खुद से शुरू होता है। क्लियर है?
जो लोग सदगुरु को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग रवि साहब को फॉलो कर रहे हैं ना, क्या नाम है उनका, श्री श्री रविशंकर, और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो जो लोग इनके क्लास में बैठ रहे हैं या फिर ओशो को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी तरह के, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं कोई ना कोई, और उनके योगा सेंटर में या फिर उनके द्वारा जो सांभवी है और बहुत सारे मुद्राओं का जो उन्होंने प्रैक्टिस कराया जाता है, लेकिन उनके पास भी अंदर में क्या बताया जाता है, मैं तो उतना डीप में नहीं गया क्योंकि मैं कभी उस तरह के किसी गुरुओं को फॉलो नहीं किया। मैंने जो भी चीज़ सुना अपने ऊपर अप्लाई किया, जो मेरे पे काम किया मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं सबरी हूँ आपके लिए, और मैं आपको नारायण समझता हूँ। मैं अपने खाता हूँ, मीठा लगता है तो आपको बढ़ाता हूँ। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पारितोष जी आप सो रहे हैं क्या? तो मेरी बात क्लियर है ना? मैं एक सबरी हूँ, मेरे अंदर में बहुत कोताहल है। मतलब मुझे हर नर के अंदर नारायण दिख रहा है, बस धोखाधड़ी ये है कि आपको अपने अंदर नारायण दिख नहीं रहा है, नहीं तो वो जो गड़बड़ है ना वही है। मुझे आपके अंदर नारायण दिख रहा है और मैं सबरी हूँ। मैं हर एक बैर खुद चखता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये वाकई में मैंने ऐसे खाया, मुझे ये वाला पोर्शन बहुत मीठा लगा, मैं ये वाला पोर्शन आपको ऑफर करता हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं कर लेता हूँ मैं वही आपको कराने के लिए ऑथोरिटी भी रखता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं स्कूल कॉलेज गया नहीं, मेरे बच्चे स्कूल कॉलेज गए नहीं, और मेरी बाध्यता है कि मैं अगर कोई चीज़ को बोल रहा हूँ तो उसके ऑथेंटिसिटी कहाँ से आएगी अगर मैंने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया है। आज मैं 19 करोड़ रुपए के लेवल पे बैठा हूँ। 18 करोड़ 67-68 लाख आज से करीबन 12-15 दिन पहले हम लोग आकलन किए थे, है ना। जो अभी मोटा मोटी समझिए कि 80-90 लाख रुपया के करीब और है, जो मतलब आसपास दिखाई दे रहा है, जो कलेक्ट नहीं हुआ है, जो कुछ कलेक्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है 19 करोड़ रुपए हम लोग पार कर जाएंगे, मे बी इसी महीना पार कर जाएंगे। कैसे पार कर जाएंगे? तो ये एक जर्नी था, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है ना। तो एक एक बूंद से ही तालाब या सागर बना है ना, वैसे ही वाला बात है। तो हमने करते गए विंग्स बनते गए। अब जो मैं कर लिया हूँ मुझे पता है कि हाँ मैं यहाँ बैठा हूँ, अब यहाँ से जो मैं बातें बोलता हूँ तो वो एक ग्रेविटी के साथ बोलता हूँ। आपको बस फॉलो करना है साहब। चीजें बड़ा आसान है, क्योंकि करते नहीं है तो डरते हैं। आप करते नहीं है इसलिए 100 बातें आपके दिमाग में है, कुछ भी नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। एकदम घर से बैठ के क्या आदमी करेगा, किसके सर फोड़ेगा? किसी से कोई तू तेरा मैं मेरा नहीं है। आराम से बैठिए, अपने आप को साधते चले जाइए। जीवन में भगवान ने आपको सांसें दी हैं और सांसों को बोला है कि सांसों को गतिवान करो, सांसों के कम बेसी के से आपका ग्रोथ होता है। स्वर विज्ञान को जाके सीखिए, विज्ञान भैरव तंत्र को जाके देखिए, सब कुछ बोला गया है कि तुम घर से उतर रहे हो, तुम कौन सा पैर आगे करके उतर रहे हो, तुम्हारे कौन सी नाड़ियां है ना चल रही हैं। अगर तुमने इसमें नोटिस किया तो तुम्हारा काम बन जाएगा या फिर तुम्हारा काम रुक जाएगा, ठीक है ना। तो चीजें पहले से स्थापित है। हमने भागने के चक्कर में वो सारी बातों को कभी इज्जत दिया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं हमने। जहां आप पकड़ने लगोगे, आप रियल एस्टेट वाले हो, आप किसी भी व्यवस्था वाले हो, आपका श्योर शॉट है कि आपने जिसको बोला है वो आपका डील फाइनल होना है। तो चीजें आसान है, आप कर नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो, सोचते हो कि ये नहीं करेंगे तो वो कैसे होगा, वो नहीं करेंगे तो अरे भैया प्रधानमंत्री चल के आपके चौखट पे आएगा, बाकी का बात तो छोड़ दो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। पानी में आग लगा सकते हो, पानी में चल सकते हो, ये सब कुछ हो सकता है, ये हर एक इंसान कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोग बाकी चीज़ों को मिथ मान चुके हैं, है ना, आडंबर मान चुके हैं, तो इस तरह की बातें बड़ा फिजी है। और कोई करता है तो लोग उसको फिर उससे भय खाने लगते हैं कि यार बहुत तेज आदमी है, बहुत काबिल आदमी है। तो इस तरह की भी भावनाएं लोगों के अंदर आती है, अरे भाई बहुत पहुंचा हुआ आदमी। तो इस तरह की चीज़ों को आपको देखने मिलता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको बस चीज़ें जैसे गाइडेंस मिल रही है उसको करना है। आप पहले अपने लेवल पे नॉर्मल हो जाए, फिर अपने परिवार के स्तर पे नॉर्मल हो जाए, फिर अपने सोसाइटी समाज के लेवल में नॉर्मल हो जाए, आप न्यूट्रल हो जाएं, आप बैलेंस हो जाएं। सभी लोग टाइप कर दे न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड। अभी आप न्यूट्रल और बैलेंस है ही नहीं, आपके पास इतने बायस हैं, इतने रेजिस्टेंसेस के साथ आप चल रहे हैं ना कि भगवान जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया के रोडों पे गाड़ी चला लेना अपने आप में एक कमाल है। क्योंकि जो इंडिया का रोड सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो दुखदाई है। फिर भी अगर आप जिंदा घर लौट रहे हैं, इसका मतलब भगवान की असीम कृपा है यहाँ पे। ये बात आप सुन रहे होंगे ना कि इंडिया का जो रोडवेज है और जो रोड की जो ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो जानलेवा है। वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्डाइज वे है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, उसके हिसाब से इंडिया के अंदर धोखाधड़ी है। फिर भी आप डेली घर लौट आ रहे हैं रोड पे निकलने के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। ऐसे जो तो आपको समझना होगा कि धोखाधड़ी में जीने का आदत लग गया है हम लोग को। हम लोग गड़बड़ घोटाला के अंदर इस तरह से संलग्न हो गए हैं कि लगता है यही तो लाइफ है, यही तो जिंदगी, यही तो भागम भाग है, यही तो टकराना तो पड़ता ही है। कुछ टकराना वकराना नहीं पड़ता, आपको सिस्टम नहीं पता है। यानी आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपका वरदान है, बट आपकी राइट पोजिशनिंग शुभ नहीं है। जहां वो राइट पोजिशनिंग शुभ होगी ना, तो जैसे आप
जैसे दूसरे पनप रहे हैं वैसे आप। इलॉन मस्क क्या है? इलॉन मस्क चंद दिनों में बना हुआ मिलीनियर है, बिलीनियर है, जो संसार का सबसे बड़ा आदमी है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शांत किया और वो सब कुछ करने लगा जिसके लिए दुकान बाकी लोग माथामारी कर रहे हैं। कुछ नहीं है, कोई भागम भाग नहीं है, कुछ नहीं है। तो एकदम समझिएगा, चीज़ें होती हैं, आप करने के लिए सज्ज हो जाइए। आपके जो भी पेमेंट है रिलीज कीजिए और चीज़ों को आगे होने दीजिए। आपका बैंक में पैसा रखा हुआ, आपका एफडी रखा हुआ, आपका इधर उधर के पैसे, वो आपकी किसी तरह की ताकत नहीं है। वो सिर्फ आपका इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से आपके पैसे का डेप्रिसिएशन है। आपको समझना होगा कि बड़ा आदमी बड़ा कब होता है। एक आप जिसको बड़ा मानते हो, जिसको शानदार इंसान आप महसूस कर रहे हो ना, उसके पास हर एक चीज़ का एक एक्सपर्ट है। उसको पता है, मैंने रात में डिस्कस किया था ना, उसको स्टैंडर्ड पता है कि मुझे नाश्ता में क्या खाना है, उसे कितना कैलोरी लेना है, उसको दोपहर में क्या खाना, उसको एक एक्सपर्ट लगा हुआ उसके खाने को, उसको परोसने के लिए, चाहे उसको खाने का औसत बताने के लिए। मेरे को क्या करना है, क्या बोलना है। देखिए राहुल गांधी का अभी स्टाइल बदल गया बात करने का, नोटिस किया आपने? राहुल गांधी का स्टाइल बदल गया। तो उसने क्या किया, उसको एक ने एक्सपर्ट ने जाके टीच किया, उसने जाके सीखा। पहले झंडूबाम की तरह बात करता था, आजकल लगता है कहाँ का बहुत बड़ा लीडर आ गया है। सामने से चैलेंज कर रहा है कि इस बार गुजरात में तो तुमको पटक के मारूंगा। किसको बोल रहा है? संसद में खड़ा होकर के सामने वाले प्रधानमंत्री को बोल रहा है। तो है ना, स्पीकर को बोलना पड़ रहा, भैया गरिमा में बात कीजिए, आदर से बात कीजिए। आप प्रधानमंत्री की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं, आपको उधर मुंह करके बात ही नहीं करना है, आपको हमेशा स्पीकर की तरफ मुंह करके बात करना है। आप स्पीकर को एड्रेस कर रहे हैं, ना कि किसी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को। तो कहने का मतलब है कि ये एटीट्यूड कहाँ से आया, इतना दिन से कहाँ चला गया था? ऐसे ऐसे करके बात करता था, अचानक से ऐसे करके बात करने लगा, क्या हुआ? तो हर चीज़ का एक्सपर्ट है। आपको जिस दिन पता चल जाता है कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे बहुत बड़ा चीज़ लीड करना है, अभी तक उसको झुंझुना पकड़ा करके लोग बोला था तू कांग्रेस का नाक है, नहीं रहेगा तो पूरा कांग्रेस खत्म हो जाएगा। अब उसको समझ में आ गया कि हाँ, मैं कांग्रेस हूँ और मुझे कांग्रेस को लेके आगे बढ़ना है। अब देखिए उसने एटीट्यूड ले आया, अब ऐसा पटक के मारता है, हर बात के पीछे हाथ भी मिलाता है। तो बात करता है कि देखिए आपने स्पीकर साहब मुझसे हाथ मिलाया तो ऐसे हाथ मिलाया, और नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाया तो ऐसे हाथ मिलाया। तो अब वो हर एक बात को नोटिस करके उसमें कटाक्ष करने लगा है। समझ में? कुछ दिमाग से चलिए, हर चीज साइकोलॉजी है। जिस दिन आप चाह लेंगे, साइकोलॉजी को पकड़ लेंगे, और साइकोलॉजी को जहां आपने हिट करना शुरू किया, लोग आपके तरफ झुकना शुरू करेंगे। मेन बात पे आइए, आपके शब्दों का बहुत बड़ा औकात है। आपका शब्दों का चयन, आपके गट का, आप अंदर से देखते क्या है खुद को या समाज को या सामने वाले को, आपको दिख क्या रहा है, आपके गट और आपका थ्रो वहीं से निकलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? आपका गट आपको दिखता क्या है, तो आपकी जुबान का जो धार है वहां से निकलेगा। ठीक है ना? तो हर एक चीज एक दूसरे से पैरेलल या लाइन है। यहाँ पर मानिक साहब बैठे हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, फिल्मों में इनका बहुत सारा चीज आता है। इनको पता है किस तरह सिचुएशन को डिमांड होता है। हम दौड़ के आ रहे हैं तो कैसे एक ही डायलॉग बोलना है कि राजू भाग गया। हम दौड़ के आ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे, राजू भाग गया, राजू भाग गया। हम सोए हुए, राजू भाग गया। उसको पता है कि मुझे हर सिचुएशन को एक ही डायलॉग में जस्टिफाई कराना है। अगर राजू भाग गया मेरा डायलॉग है, और मैं अगर लेटा हुआ हूं बिस्तर पे, है ना, तो मुझे राजू भाग गया कैसे बोलना है। अगर मैं दौड़ रहा हूं और राजू भाग गया मुझे डायलॉग डिलीवर करना है, तो मुझे कैसे करना है? क्यों मानिक साहब? तो बहुत जरूरी है कि एक ही बात, लेकिन हालात क्या है, उन हालातों में उस बातों की गरिमा क्या है, उन बातों का थ्रो कैसे होगा, मैटर करता है। तो जैसे आपने इन बातों के क्लासिफिकेशंस को पकड़ लिया, आपका फिल्म सुपरहिट है। क्या बोला मानिक साहब? आपने इस पोजिशनिंग को जहां अलाइन किया, आपका फिल्म सुपरहिट है। क्योंकि बातें बोली कैसी गई हैं, बातें क्या है इसका कोई औकात नहीं है। बातें किन परिस्थितियों में बोली कैसी गई हैं, इसका औकात है। क ख ग घ ABCD से सब कुछ बनता है, हर एक डायलॉग वैसे ही है। लेकिन उस डायलॉग को डिलीवर किसने किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है, अमिताभ बच्चन ने किया है, परेश रावल ने किया है, या अमरीश पुरी ने किया है। हर आदमी की अपनी गरिमा है, और वो अपनी बातों को उसी तरीके से बोलेगा जिस तरीके से वो बोलने के लिए उसको एक फ्रेम मिला है, उसको एक ग्राफ मिला है। अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने कुछ रिसर्च किया था, बोला कि उनको जो डायलॉग बोलना होता है स्क्रीन पे, वो उसको 2 दिन पहले अपने पास मंगवा लेते हैं, और उसका एक्सपर्ट है, और वो अपने ग्राफ में डालते हैं उस लाइंस को कि मुझे कहाँ पे टोन कम और कहाँ पे टोन हाई करना है, सप्लाई क्या करना है, डिमांड क्या है, सिचुएशन क्या है। तो आप अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वो अमिताभ बच्चन है। अरे उसने अपने आप को अमिताभ बच्चन बनाया है।
हम भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी अंदाजे मानिक साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बोलिए ना कुछ। आप सर यहाँ पर सीनियर मोस्ट हैं, आपकी फिल्में पर्दे पे आ रही है, हाँ, अगर आपसे नहीं सीखे तो किससे सीखेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली राइट सर। बोलिए ना सही सर, है प्लीज एकदम। गाइड कीजिए, कैसे फिल्म हिट होता है बताइए ना। परफेक्ट बात आपकी, एकदम सटीक तरीके से समझा रहे, एकदम 100% परफेक्ट चल रहा है। प्लीज प्लीज कुछ आप ये भी होता रोशनी है, दीजिए। यही हर चीज में ये होता है, नॉट ओनली एक्टिंग साइड, हर चीज में यही चलता है सर। और साइकोलॉजी वर्क करती है, गट्स, एटीट्यूड, परफेक्टली सर। मतलब जो आप लोग चाहते हैं कि मैं पहले सीख लूं, बहुत सारा पी लूं, फिर उड़ेलूंगा तो मार्केट पैसा देगा, इल्ले यहां बैठने के बाद 4 साल की जर्नी में मुझे ये पता चल गया कि जिस दिन मैंने वेबिनार नहीं किया तो उस दिन मुझे 20,000 रुपये दिया था किसी ने। सर एक बस इसमें ऐसा ही है कि जैसे खाया, एनर्जी ली और तुरंत यूज करना है। क्लियर है? तो बहुत जरूरी है कि आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो तुरंत क्रिएट कीजिए। मैं बार बार लिख के भेज रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, आप लोग इसकी गरिमा को समझिए। आप एक अलग सी जर्नी में आ गए हैं, वो 99% आदमी से परे हो गए आप यूनिक हो गए। अब आपकी हरकतों की वजह से देश का नाम होगा या देश का नाम खराब होगा, आपने इस बात की ओथ ले ली, ऑनरशिप ले ली है। अगर आपने सुल्तान भाई ऑनरशिप ले ली है कि अब कानून की दुनिया में, छोड़ो बहुत बड़ी बात, मैं सिर्फ कानून की दुनिया में एक आइडल बन जाऊंगा, एक ऐसा आइडल बन जाऊंगा कि वो काला वाला आंख में पट्टी बांधा हुआ तराजू पकड़ी हुई जो लेडी है ना, उसके जगह सुल्तान सिंह बरमाला का मूर्ति आ जाएगा। आपने इमेज किया अभी अपने आप को कि वो काली वाली लेडी क्यों रहेगी, मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दूंगा। सोचने भर का तो देर है साहब। जब मैं यहां बैठ के कल्पना कर सक रहा हूं और मैं सुल्तान सिंह बरवाला को एक ऐसा आइडल समझ रहा हूं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे बोला कि इस बार जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स होने वाला है, जो आपका जो होने वाला है रोटरी क्लब का इलेक्शन, उसमें आप बन रहे हो, एक ना एक पोस्ट के लिए आप डिजर्विंग हो, और आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे सेक्रेटरी, चाहे ट्रेजरर, ये 3 में से कोई एक ओहदा आपका है। आपने एक बार फील तो करो, एक बार फील करके उसके लिए आप एनर्जी थ्रो तो करो। आनी है, आनी है, चीजें हैं, बस एक आपके अंदर से एग्रेशन चाहिए कि हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा है। जैसे एक लड़की से आपकी आस्की हो जाती तो आप क्या करते हैं, कैसे यार मेरे अलावा और कैसे किसी का, एक भूत दिमाग पे सवार होता है, मतलब कुछ नहीं। तो वो वाला उसको लाइए वापस से, वो जिंदगी में आइए, लौटिए 18 साल, 20 साल, 22 साल के उस गर्माहट को फील कीजिए, उस एग्रेशन को फील कीजिए, देखिए सब काम बनता है। क्योंकि अब तो आपके पास आपका जीवन का ठहराव भी है, आपके जीवन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ है, वो आपके एटीट्यूड से बाहर थोड़ी ना जाएगा। चीजें होती हैं, करने के लिए सामने आइए प्लीज, है ना। ये सेशन क्लियर हो गया आपको। हम अब जो पैसे लेते हैं, आप और आपके स्पाउस और आपके 21 साल से नीचे वाले 2 बच्चों के लिए लेते हैं, 4 लोगों के लिए हमारी जवाब, जैसे मेरा परिवार है वैसे मैं आपको देखता हूँ, क्लियर बात है। उसके बाद 21 साल से ऊपर का कोई भी आपका दोस्त या बिजनेस पार्टनर या फिर कोई भी सगा संबंधी है जो 21 साल से ऊपर है, उसके पैसे आपको अलग से देने होते हैं। लेकिन मैं आपको एक पैरेलली लेता हूँ। पैरेलली का मतलब एक ही यूनिट में लेता हूँ, मतलब अलग अलग नहीं लूंगा। जब भी सेमिनार या आपको अलग से नर्चरिंग करूंगा तो आपके पार्टनर को साथ में बैठा के लूंगा, मतलब वो एक अलग, मतलब इसको ना कारपोरेट कल्चर में आ जाएगा, वो एक सिस्टम, एक बिजनेस, एक सिस्टम, एक कंसर्न को मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो आप और आपका पार्टनर एक साथ आएगा, वो पूरा कंसर्न को मैं डील करूंगा। यानी अब यहाँ पे जो पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ उसका जीएसटी आपके नाम पे, आपके पार्टनर के नाम पे नहीं, बल्कि कंसर्न के नाम पे दूंगा, जिससे कि कंसर्न से आप पैसा वापस ले पाओ। यानी गवर्नमेंट आपके जीएसटी को ऐड और लेस कर रही है तो वो उसका बेनिफिट ले पाओ आप। तो चीजों को फिर मैं कंपनी नुमा देखता हूँ, कंसर्न नुमा देखता हूँ। एक कंपनी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है, जैसे कि आपने देखा विजय माल्या, ये वो किंगफिशर डूब गया, वो डूब गया, वो डूब गया, लेकिन वो तो नहीं डूबा। कितने बार आपने फिल्मों में देखा कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, मजदूर हंगामा कर रहे हैं और वो बेटा कार में घूम रहा है। क्या है? तो कंपनीज, एक आदमी के पास 1000 भी कंपनियां हो सकती है और हर एक कंपनी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होता है। अगर टाटा का नमक बंद हो गया, टाटा का प्यूरीफायर बंद हो गया, तो टाटा का नैनो बंद हो गया, तो टाटा का बाकी का चीज बंद नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कंसर्न समझ में आएगा, कंपनी एक्ट समझ में आएगा, 1956 कंपनी एक्ट क्या होता है, उसके अंदर के लॉस क्या होते हैं, उसके बाई लॉस क्या होते हैं, वो सब हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि आपको पता है मैं एक
है ना। एक ITP भी हूँ, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ, और मैंने काफ़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काम किया हुआ है। तो आपको पता है, मैंने बताया है आपको कई एक बार बताया है कि मैं भी एक LLB होल्डर हूँ। बट कहने का मतलब है जहाँ ज़रूरत नहीं है तो बताना नहीं है, अपने आप को नीरा बेवकूफ़ी मान के चलना है, ठीक है ना। जैसे कि चीज़ें आप करें तो चीज़ें बताना ना पड़े कि मैं ABCDEFGH हूँ, आपकी हरकतों से ही पता चल जाए कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ लैंड करते हैं। गेट इट। तो चीज़ों को हरकतों से प्रूफ करना है, और आप लोग अपने चीज़ों को बांधिए, अपने आप को अफर्म कराइए कि मैं जो बहुत सारा समय का जो मैं सोचा नहीं था कि मैं इतने समय में ये कर लूँगा, क्योंकि मैं एक डायमंड मेंबर हूँ इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, ड्यू टू मेरे पास एक स्टैकिंग है जहाँ से मेरा रेज स्टैंडर्ड हर मिनट हर सेकंड रेज हो रहा है। और जैसे जैसे मेरा स्टैंडर्ड रेज हो रहा है मुझे चीज़ें स्केल में दिख रही है। व्हेन वी स्टार्ट टू मेजर अ थिंग विल ग्रो। जहाँ मैं चीज़ों को मेजर करना शुरू किया कि मैं नाश्ता में नंबर 0.3 कर रहा हूँ या नंबर 0.5 कर रहा हूँ, नंबर 0.7 कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा स्टैंडर्ड कहाँ है, मैं कौन से स्टैंडर्ड का नाश्ता कर रहा हूँ, मैं जो ड्रेस पहना हूँ वो क्रिच मारा हुआ है या नहीं, और उसका स्टैंडर्ड क्या है, मैं जहाँ बैठा हूँ उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं। तो जहाँ आपने चीज़ों को स्टार्ट टू मेजर अ थिंग विल ग्रो। खत्म बात। दिवास अधिकारी, बात समझ में आ रही है? द्विवेदी सी बातें क्लियर है? कश्यप साहब आप तो सुन ही रहे हैं ना, कृष्णा भाई आपका वीडियोस नहीं आ रहा, आप लोग जो भी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, नवीन वर्मा जी आपसे भी नम्र निवेदन है, चीज़ों को पार्टिसिपेट करें, जो करते हैं उसको कैमरा में कैच करके ग्रुप में शेयर करें, मैं नोटिस कर पाऊँ ना कि आपका ग्रोथ का स्तर क्या है। नहीं तो बचर बचर से कोई मतलब नहीं है। कोई अगर मेरा बंद कर दो किसी और का भजर सुन लो आप, लेकिन चीज़ों को अगर जीवन में स्थान दोगे तो फिर वो फलित हो जाएगा। प्लीज़ उषा मैम, आपका 2 वीडियो पेंडिंग है इंट्रो का, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मुझे दिखना चाहिए इमीडिएटली। मैं बार बार आप लोग के ऊपर इतना है ना, मेरे को आप में नारायण दिख रहा है, आप ही को अपने आप को क्या दिख रहा है, भगवान ही मालिक है। मुझे आपकी सेवा में खड़ा भी ये नहीं है, मतलब मैं पूरा खुले दिल से, पूरा एकदम दिल जान से लगा हुआ मैं, मेरे बच्चे आप देख रहे हैं, मेरी बिटिया का 4-5 दिन हो गया, थोड़ा मौसम की वजह से इधर काफ़ी मौसम बदल रहा है, धाए, कभी गर्मी कभी बारिश कभी ठंडा चल रहा है, अचानक से चद्दर लोग कंबल ओढ़ने लग गया इधर, है ना। तो आप समझ रहे हैं कुछ भी हो रहा है, मौसम एकदम उठा पटक कर रखा है। तो आपको प्लीज़ साथ देना होगा। अगर वाकई में आपको ये लंबी जर्नी में है तो आपको समझना होगा, अपने आप को अफर्म कराइए कि कुछ नहीं हो रहा है तो मत बोलिए कि सर पैसे नहीं हो रहे, नहीं, छोड़ दीजिए, मैं हो चुका। और यहाँ पे मैंने आपको बोला है क्या है ये एरिया कौन सा है, ये शुक्र पर्वत है। इस शुक्र पर्वत पे ग्रीन कीजिए, ग्रीन करके, जैसे मैं तो डेली ग्रीन करके 55 लिखता हूँ, मेरे लिए 55 बहुत वर्क करता है। आपको जो आपको वर्क करता है 33, 88, 99, डबल अंक लिखिए, सिंगल नहीं डबल अंक लिखिए, जो लिखिएगा उसको डबल लिखिएगा, 2 आपको क्या फेवर करता है फील कीजिए, फील करिएगा, आपको फील होगा, जो आपके अंदर से वाइब्रेशन आएगा ना उसको एक्सेप्ट कीजिए। तो मेरे लिए 5 मेरे को बहुत पहले से मेरा 5 से लेकर के है, जबकि मेरा 5 से कोई दोस्ती नहीं, कहीं से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना जन्म से, ना इधर से, ना उधर से, लेकिन 5 से मेरा कनेक्शन है। और मैं जब भी 55 लिखता हूँ मेरा ऐड बहुत लो कॉस्ट में मुझे रिजल्ट देता है। मुझे सेवरल जो इनकम के जो मेरे सोर्सेस है वो सब एक्टिव हो जाते हैं, मुझे हर एक सोर्स से पैसे आने लग जाते हैं। तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ लगातार जब से मैं ये करता हूँ, है ना। अभी जस्ट ही मैं स्नान किया हूँ तो ये हट गया है, नहीं तो ये अभी से लेकर रात तक रहेगा, ठीक है ना। और जब ये लाइट हो जाएगा मैं वापस से ओवर राइड कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये शुक्र पर्वत है, इसको हमेशा ग्रीन करके रखिए आप लोग, है ना, ठीक है। चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? मुझे आपके वीडियोस चाहिए, हर एक कोई जान जाइए, मुझे आपकी हरकतें दिखनी चाहिए। अगर मेरा नज़र आप पे पड़ेगा तो मैं आपके अच्छे बुरे चीज़ों को मेज़र करूंगा और मैं आपको गाइड करूंगा। मैं आपका चाकर हूं, मैं आपका सेवक हूं, आप प्लीज़ समझिए मेरी बात को। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए चुना है कि मैं आपको फ़ोन करूं, आपसे बातें करूं, आपको गाइड करूं, आपको पकड़ूं, भागने ना दूं, एक जगह बैठाऊं, ठीक है ना। मेरी बातें क्लियर है? तो आप लोग करें और अपने जो भी एक्सपीरियंस है क्लासेस के उसको बोलें, जिससे कि आपकी बातें किसी और को सुनाई पड़े तो उसका भी भला हो। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस करें, जो 7 नंबर का कारक है। मैंने क्या सिखाया? जब आपकी बातों से, आपके कृत्यों से किसी का दिल, किसी का आत्मा जुड़ाता है, किसी के काम बनते हैं ना, तो आपका नंबर 7 स्ट्रांग होता है। क्या समझ में आया? तो आपके शब्द मधुर हैं, अच्छे हैं, किसी के काम को संवार रहे हैं, आपकी बातों में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है, आपने कुछ ऐसा उसको मार्गदर्शन किया है, तो ये सारी बातें आपका 7 नंबर है। तो आपका 7 स्ट्रांग होता है ना। क्लियर है बातें? बाकी तो यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और बहुत सारे अलग अलग विद्याओं के ज्ञाता बैठे हैं जो अलग अलग समय पे अपनी बातों को रखेंगे, उनको मौका दिया जाएगा। मंगल मिलन बनाया ही गया था आपको अपने बारे में बताने के लिए,
मैं अपना प्लेटफॉर्म का जो ऑडियंस है मैं आपको शेयर करता हूँ मंगल मिलन के थ्रू, जहाँ पर आप अपनी बातें बोलते थे। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हूँ, वापस जैसे आप लोग नर्चर हो जाएंगे तो फिर इसमें एक अलग सा एडिशन कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ मैंने कर रखा है तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर कैसे स्लो करना है, कहाँ पे कैसे स्पीड करना है, कहाँ पे मुझे आपको बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। जैसे कि आपने वो हमारे जो डायमंड मेंबर हैं लाल साहब सिंह, आपने उनका सुना होगा, उन्होंने मंगल मिलन के बारे में काफ़ी बात करी है। उनके बहुत सारे वीडियोज़ है जो उसमें मंगल मिलन की चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें लोग संडे मेगा क्लास की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे करके जो हमारे इवेंट्स हैं, है ना, तो प्लीज़ आप लोग तुरंत ही डायमंड मेंबरशिप के लिए बढ़िए। जो भी पेमेंट्स है उसको रिलीज़ कीजिए, बांधिए मत। पैसा बांधने की चीज़ नहीं है, पैसा आपकी बिटिया है, पैसा आपकी बहना है। जहाँ दूसरे के घर जाएगी वहाँ आपके लिए कुटुंब लेके आएगी। क्या समझे, क्या समझे? वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी घर में रखने की चीज़ नहीं होती, लक्ष्मी को प्लेस करना पड़ता है, लक्ष्मी को विदा करना पड़ता है। जब वो जाती है तभी लेके कुटुंबदारी आती है। जब बिटिया विदा होती है तब दामाद भी आता है और दामाद के साथ नवासे नातियाँ भी आती है ना। तो आपको समझना होगा यही कुदरत का संस्कार है, यही प्रकृति ने बनाया व्यवस्था है ना। आपको लक्ष्मी के साथ कैसे बिहेव करना है समझना होगा। लक्ष्मी को बचाइए मत, पकड़िए मत, ये भाग जाए, ये चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा। ना 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 ना, वो जाएगी तभी आपका सामर्थ्य बढ़ेगा। रख करके अगरबत्ती दिखाने से सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। और कोशिश कीजिए कि आपके बैंकों के साथ अच्छे रिलेशंस हैं, तो आपके पास घर में एक तिजोरी हो, नहीं है तो बाजार में स्टील का तिजोरी मिलता है, एल्युमिनियम का तिजोरी मिलता है। एक जैसे एक गल्ला होता है ना, गल्ला मिलता है, लाइए, उसके अंदर थोड़ा स्वास्तिक बनाइए, एक आध दो स्टिकर खरीद के लाइए, स्वास्तिक का स्टिकर चिपका दीजिए उसके ऊपर। उसमें थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा हल्दी का गांठ रखिए लाल कपड़ा बिछा के। और बैंकों से अच्छा रिलेशन है तो 100 का गड्डी, 20 का गड्डी, 10 का गड्डी मिलता है, ला करके गड्डी रखिए पूरा बंच। जैसे कि मेरे घर में गड्डी रहता है, तो जब मेरे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम लोगों को देना होता है तो 10 का गड्डी या 20 का गड्डी एक एक दे देते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं 2000 का क्या सामान दूंगा उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब वो गड्डी देता हूँ ना तो उनको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। ये मुझे किसी ने दिया था, तो वहाँ से मैं धनबाद गया हुआ था अपने बहन जीजा के घर। तो जब हम लोग लौट रहे थे तो उनके मतलब बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उनके पास था, तो वो बच्चों के हाथ में वो गड्डियाँ दे दिए थे, 10 वाली गड्डियाँ। तो मुझे ये आइडिया ये बहुत अच्छा क्लिक करता है। जब घर में कड़कड़िया नोट रहता है ना, गड्डी में सजा हुआ रहता है, तो उसका देखने में लुक बहुत अच्छा आता है। इससे पता चलता है कि आप अपने लक्ष्मी को संभालते कैसे हैं, उसको कैसे प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो आप बैंक से गड्डियाँ, कड़कड़िया गड्डियाँ ला के रखिए, है ना, कुछ नहीं है। 5-10 हज़ार तो कोई भी घर में रख सकता है। अगर बहुत बड़ा पैसा नहीं रख सकता तो 5-10 हज़ार तो ऐसे मोड़ मचोड़ के कहीं पे रखे। उससे अच्छा है कि आप बैंकों से गड्डियाँ ला के रखिए, बढ़िया से प्लेस करके सजा के रखिए, और डेली जब अगरबत्ती दिखाते तो वहाँ भी अगरबत्ती दिखाइए। गेट इट ना। आपको बताना होगा पैसा को कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आपका मैसेज तत्वमसी है, याद रखिएगा। हम लोग कण कण में वास्ते हैं, तत्वमसी हैं। श्री कृष्ण जी ने बोला भी था युद्ध के मैदान में कि देख अर्जुन, ज्यादा इधर उधर की बातें ना कर, मेरे पास इतनी औकात है कि मैं यहाँ पे एक एक धूल के कण से युद्ध लड़वा सकता हूँ। एक एक धूल के कण में मेरी आवाज सुनने की और उसको मेरे आदेश को पालन करने की सामर्थ्य है। इसलिए तू ये मत समझ कि तू ही करने वाला है, मैं किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ। हर कण मेरी बातों को मानने के लिए बाध्य है। और यही आपको समझना होगा कि आपका चप्पल, आपका कपड़ा, आपका पर्दा, आपका बिस्तर, आपका हर एक चीज आपको देख रहा है। आपका बर्तन, आप रात में एक भी बर्तन जूठा ना छोड़े सिंक में। बच्चों को सिखाएं कि बेटा खाने के बाद बर्तन उधर खिलाने नहीं करेगा, जैसे हाथ धोएगा वैसे बर्तन धो के खड़ा करेगा जहाँ खड़ा करते हैं। ये एकदम पहले बार से घुसेड़ दे दिमाग में। चप्पल पहले जा करके धो जहाँ पर पानी की व्यवस्था है, बाहर आंगन में ही धो के आया करो चप्पल, और चप्पल किनारे प्लेस करो, फिर तुम घर में घुसोगे, पैर पोछोगे, फिर घर में आकर के पैर धोना है, हाथ धोना है। तो ये पहले से घुसेड़िए दिमाग के अंदर कि संस्कार हो, व्यवस्थित हो, गंदगी से दूर हो। माँ लक्ष्मी कैसे आपके चौखट पे नहीं विराजेगी मैं भी देखूंगा, ठीक है ना। सकरी वाला बर्तन एकदम सिंक में नहीं होना, आटा लगा हुआ बर्तन, चौका, बेलन, काम हुआ साफ मांगता है। जो कढ़ाई में खाना पका रहे हैं, कढ़ाई से खाना बनाने के बाद बर्तन में प्लेस कीजिए, बाकायदा उसको इज्जत दीजिए कि ये तुम्हारा स्थान है, ये तुमको दे रहा हूँ। वो कढ़ाई और बर्तन तुरंत धो करके खड़ा कीजिए जहाँ खड़ा करते हैं। इस्तेमाल जिसका जितना है उतना ही करिए, ज़्यादा उसके साथ अगर आप उसको लसेड़ घेस कर रहे हैं तो वो आपको दुख करेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का स्थान रसोई है, याद रखिएगा, आपका तिजोरी नहीं है। माँ लक्ष्मी आपके रसोई से है, हर वक्त याद रखिएगा। रसोई एकदम ऑर्गेनाइज और प्लेस होता है,
जितना जल्दी आप ये काम करने लग जाएंगे उतना जल्दी चीज़ों को करना नहीं पड़ता, चीज़ें खुद ब खुद होती है। आपने जिसको जहां जितना रिस्पेक्ट देना अगर दे दिया तो कमाल होता है। ओके, कुछ नहीं है, सारी बातें जो आप सोच पाते हैं वो आपके अंदर पहले से विराजमान है, बस उसको बाहर नहीं खोजने की जगह अपने अंदर खोजिए, वो मिल जाएगा। और बाकी मैं तो बैठा हूँ। ओके, चीज़ें कनेक्टेड है सब कुछ। कृष्णा भाई, सुल्तान जी, सबके लर्निंग वीडियोस आएंगे, पीडीएफ अलॉटेड है। जिनका पीडीएफ अलॉटेड इसलिए नहीं हुआ है उनको क्योंकि उनके टास्क उन्होंने पूरा नहीं किया है। जैसे आपका टास्क पूरा होगा मैं पीडीएफ तुरंत भेजता हूँ। मैं बहुत एक्टिव हूँ आप लोग के साथ, आपको मैं नोटिस हुआ होगा इतने दिनों में, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मेरे से आप रेस नहीं लगा सकते, मैं हर वक्त आपसे स्पीडी मिलूंगा। अभी हाल में मेरे घर में मैंने छोटा सा पार्टी किया था, मेरा दोनों छोटा भाई मेरी बराबरी में डिप्स नहीं मार पाया, जबकि एक 58-55 किलो का है और दूसरा 80-90 किलो का है, और जबकि मैं 100 किलो का हूँ। मैं जितना डिप्स मारा वो नहीं मार पाया। मैं 200-300 स्किपिंग कर लेता हूँ, वो लोग 15, 20, 25, 30 में हाफ जाते हैं। देख लीजिए फ़र्क, देखिए मेरा बॉडी भारी है, लेकिन मैं क्योंकि एक वर्जिश किया हुआ एक मसल्स मैन जिसको बोलते हैं ना, बॉडी बिल्डर मैं वो हूँ। स्पोर्ट्स रहा हूँ, मेरे पास 8-10 मेडल्स हैं, प्राइजेस हैं, तो मेरा एक अपना बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, मेरा बॉडी है, लेकिन बावजूद इसके मेरे बॉडी के अंदर में एनर्जी है। मैं बाकायदा डेली घास पे चलने जाता हूँ, खाली पैर में 1-1.5-2 घंटा घास पे रहता हूँ। ठीक है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे, मैं पार्क से वीडियो बनाता हूँ, मैं खाली पैर ही होता हूँ उस वक्त, है ना। तो बाकायदा क्योंकि मैं बहुत अच्छे कॉलोनी में आ गया हूँ, बहुत अच्छा रिहायशी इलाका में आ गया हूँ, तो यहाँ पर हर 8-10-15 बंगले के बाद एक गार्डन है बीच में, है ना। चारों तरफ से 8-10 बंगले हैं और बीच में गार्डन है, बंगले फिर बीच में गार्डन है, और बहुत अच्छा अच्छा गार्डन है पूरा। बाकायदा उसमें मेंटेनेंस के स्टाफ आते हैं 5:30 बजे, पहले गर्मी था तो 4:30 बजे खुलता था, अभी 5:30 बजे खुलता है। ऐसे करके वो पूरा लाइट बत्ती हर चीज़ लगा हुआ है, बहुत सुंदर गार्डन। यहाँ पर पूरा गार्डन बहुत सुंदर सुंदर बनाया गया है, और उसको पूरा म्यूनसिपाल्टी वाले कवर करते हैं। और जब से यहाँ पर हॉकी हुआ है ना, वर्ल्ड कप, उसके बाद से बहुत ज़्यादा सब ऑर्गेनाइज हो गया है ना। पूरा म्यूनसिपाल्टी वाले कवर करते हैं, हर पार्क में हर जगह हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है, बच्चे लोग तैरने जाते हैं, खेलने जाते हैं, बहुत व्यवस्थित है। एक एक चीज़ इतना ऑर्गेनाइज है। हमारा शहर छोटा है लेकिन इतना ज़बरदस्त डेकोरेशन कर दिया गया है, इतना हर चीज़ अरेंज कर दिया गया है। स्टेडियम तो भरमार है, करीबन 15-20 स्टेडियम है हमारे आसपास, ठीक है ना, और बड़े बड़े स्टेडियम है, देख के दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्विमिंग पूल है, बड़े बड़े अब सब चीज़ें यहाँ बन रहे हैं, मॉल्स आ रहा है, 4-5 बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं यहाँ पे, सब एयर कंडीशन मॉल है। तो छोटा शहर है लेकिन चीज़ें बहुत व्यवस्थित हो रही है। जैसे बोला ना कि मैं काबिल हुआ तो भगवान ने सारी चीज़ें अच्छी वाली यहीं पे मेरे लिए अरेंज कर दी। आप समझिए इसको लॉजिकली। मैंने आज से करीबन 1 साल पहले बोला भी था क्लास के अंदर कि देखिए मुझे कहीं भागना नहीं पड़ा, मैं काबिल हुआ, मेरा वाइब स्ट्रांग हुआ, मैं नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें अट्रैक्ट करने लगा, तो मैं जहाँ हूँ भगवान ने सारी चीज़ें वही ला के जोड़ दी। अच्छा चलने के लिए पार्क है, गाड़ी के लिए पार्किंग स्पेस है, मतलब आपको कुछ कुछ दूर में पार्किंग स्पेस मिलेगा, शौचालय टॉयलेट मिलेगा बाकायदा, एक एक चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। कुछ एक जगह फ्री में आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी, कुछ एक जगह पैसे भी लगते हैं 10-20 रुपये, जो बहुत रियायती बहुत घना आबादी वाला जगह है, सब्जी मार्केट के पास या मेन मार्केट के पास, तो वहाँ पर आपको 10 रुपया छोटे गाड़ियों के लिए, 5 रुपये छोटे गाड़ियों के लिए और 20 रुपया कोई बड़े गाड़ियों के लिए, वैसे दे करके आप अपने गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आप कहीं भी रोड पे गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। बहुत रूल्स रेगुलेशन डाल दिया गया है, बहुत सब है। मतलब आपने देखा होगा वरदान की वीडियो में भी वो छोटा छोटा क्लिप दी हुई है उसका, हमारे छत का या फिर हमारे बालकनी का, या टंच लगता है देखने में, ना लगता है क्या गजब का एरिया में रहते हैं, मतलब बहुत शानदार। तो आपको अपना एड्रेस बदलने के लिए हमेशा सोचना होगा कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, आपका एड्रेस बदलेगा, तो आपके वाइब बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। तो सारे एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंटरकनेक्टेड है ना। प्लीज़ करना शुरू करें। और जो लेडीज़ लोग हैं वो अपने श्रृंगार का पक्का ख्याल करें, क्योंकि आप 6 को प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने घर को प्रतिनिधित्व करती हैं, अपने परिवार को प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपका समृद्ध दिखना बहुत जरूरी है, अपने नज़र में भी और अपनों के नज़र में भी। हेलो, आपकी समृद्धि, आपका छुपा हुआ स्नान, आपका छुपा हुआ श्रृंगार बहुत मैटर करता है। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ महिलाओं के लिए, आपका श्रृंगार बहुत, आपके चेहरे से हमेशा ग्लोरी आनी चाहिए, ग्लोरी। आपका सिंदूर, आपका टीका, आपका चूड़ी, आपका साड़ी, आपका कपड़ा हमेशा लाजवाब और सुगंधित होना चाहिए। लोग, बच्चे आपको पकड़ ले, दूल्हा आपको पकड़ ले, वो वाला फीलिंग्स के साथ, इतना अट्रैक्टिव, इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो हर चीज़, और ये चीज़ आपके घर में स्थापित करना है। हर मर्द के लिए है कि अपनी महिलाओं को वो सारा चीज़ ला के देता जाए, गजरा ला के देता जाए,
सिंगार ला के देता जाए, एक एक चीज मार्केट से। तो खाली हाथ किसी मर्द को घर में घुसना ही नहीं चाहिए। मैं बादाम पट्टी खरीद के आ जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं लेना होता है तो बादाम पट्टी खरीद लेता हूँ, कुछ भी नहीं होता है तो चॉकलेट आलपेनलीबे खरीद के ले आता हूँ और यहाँ लाके घर में डिब्बे में रख देता हूँ। मतलब मैं खाली हाथ घुसता ही नहीं हूँ। आजकल तो आम का सीजन है तो आम खरीद के आ गया, कुछ भी, मतलब अगर कहीं कुछ नहीं भी है तो भी किसी छोटे सा दुकान से कुछ भी खरीद के ही घुसता हूँ घर। खाली हाथ तो कभी घर घुसता ही नहीं, किसी कीमत पे खाली हाथ नहीं घुसता, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि कुछ एक दायरा मर्द का है, कुछ एक दायरा औरत का है, तब जाके घर बनता है और घर वापस ब्लूम करता है। क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग जो है ना, वो बच्चों पे बहुत असर करती है। बच्चे का रूट आप हैं, याद रखिएगा, और आपका रूट भी आपके माता पिता हैं, जो भी आप हमारे यहाँ क्लियर हुए हैं कुछ 10 दिनों में और आगे क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो आपके रूट पे जहाँ आपने काम कर लिया तो कोई पेस्टिसाइड्स की अहमियत नहीं बचती है। तो आपने रूट पे काम करना है। बहुत सारी बातें करा हूँ, और भी बातें करूँगा, मुझे मौका दें। आप परफॉर्म करेंगे तो मैं आपके चीज़ों को समझूंगा और फिर आगे आपकी मदद करूँगा। जिसका इसका पेमेंट का जो व्यवस्था है वो पेमेंट रिलीज़ करे, जैसे कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। क्योंकि आप कीमत चुकाते हैं ना, तब आप अपना इंटरेस्ट चुकाते हैं, अपना पेशेंस चुकाते हैं। मुझे लगता है कि बंदा सीरियस है अपनी चीज़ों को लेकर के, नहीं तो लोरिया सुनने के लिए तो सबको कान खड़ा कर लेते हैं। समझ रहे हैं किशन बाबू, समझ रहे हैं उषा मैम? चीज़ें बहुत कीमती हैं, उसको आप रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी पलट के आपको रेस्पेक्ट देगा। ओके, आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम यहाँ इसलिए नहीं है कि अपना नाम कर सके, हम यहाँ इसलिए हैं कि हमारे वजह से पूरे दुनिया में हमारे भारत का नाम हो सके। इसीलिए हमें इस बात की प्रतिबद्धता को बांधनी है और हमें उस लेवल पे ऑनरशिप कैरी करनी है और आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। सभी को एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करें, सभी को एक दूसरे को बधाई दें और ऑल द बेस्ट बोले। कम ऑन, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू।